subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's lecture, we will learn about the algebraic expressions and identities. As you know that in your previous classes, you have learned about the addition and subtraction of algebraic expression, and today in this chapter we shall study about the division and multiplication of algebraic expressions. And we know that in an algebraic expression we come across two types of quantities. That is, number one is constant and number second is variable. Constant की अगर बात की जाए, it is a quantity. Constant, a quantity which has a fixed numerical value is known as, इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसका फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो दैट वेरी क्वांटिटी इज नोन एज कांस्टेंट. एंड नंबर सेकंड, इट इज वेरिएबल. Variable on the other hand, it is that quantity, a quantity which takes various numerical values is known as variable. It is that quantity जिसका अपना कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, that takes the different values, that takes numerous values, and that very quantity is known as variable. Now algebraic expression हम किससे कहते हैं? Algebraic expression, it is a combination of constants and variables, connected by basic signs of operation. Operation is called an algebraic expression. And basic operation, addition, subtraction, multiplication and division. Therefore, if we are supposed to define an algebraic expression, we can say that it is a combination of constants and variables. जब हम combination of constant and variables हो लेते हैं and which are connected, जो constants और variable जब भी connected किए जाते हैं, constant and variable की बात तो clear हो गई है ऊपर, तो जब उनको connect किया जाता है by the basic signs of operation, we can say that an algebraic expression gets formed. Now, when an algebraic expression gets formed, say for example we are ax plus by plus c. Say for this is an algebraic expression. ये एक algebraic expression है. तो यहाँ पे अब हमें पता है कि ये it is also composed of certain elements. इसके बिल्कुल parts हैं. ax है, by है, c है, ठीक है ना. अब इनको हम components को क्या कहते हैं? इन्हें हम terms कहते हैं. क्या कहते हैं? These are the parts of an algebraic expression and they are known as terms. term of an algebraic expression हमें पता होना चाहिए पहले. Therefore we can say that अगर term को define करना होगा तो we can say that various parts of algebraic expression which are separated by positive or negative sign are called terms of an expression. Clear? इसके बाद types of algebraic expression की अगर बात की जाए, types of algebraic expression.
या टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो नंबर वन, इट इज मोनोमियल, दैट इज मोनो मीन्स वन, मियल मीन्स टर्म, दैट इज सिंगल टर्म या सिंपल एक्सप्रेशन, expression having only one term are known as monomials. Expression having two terms are known as binomials and three terms are known as trinomials. इसके बाद है factors. अब अगर factors की बात की जाए तो we know that as discussed above the term of an expression. हाँ, if we take a term, अगर हम एक term को लेते हैं तो फैक्टर को हमने डिस्कस करना। फैक्टर किसे हम कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर टर्म की बात की जाए तो वी कैन से दैट each term of an expression is product of one or more literals oblique numbers, and these numbers comma literals of which this term is composed. This term is formed by multiplying the components, of which a term is formed, and these terms they are termed as factors. उन्हीं components को फैक्टर्स हम कहते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है सो दैट वी गेट अ टर्म. से फॉर एग्जांपल वी आर गिवन 2x स्क्वायर, तो वी कैन से दैट इफ वी सी हाउ दिस 2x स्क्वायर गेट्स फॉर्म्ड. हाँ, हमने क्या काम किया है, 2 मल्टीप्लाइड बाय x किया और x किया, तो दिस इज 2x स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर बात की जाए x स्क्वायर या x की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 की बात की जाए, इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी गेट 2x स्क्वायर. तो वी कैन इजीली से दैट दिस 2x स्क्वायर इज दिस 2x एंड x, दिस 2x स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स. तो अब हम कहेंगे यहाँ पे फैक्टर्स हम किन से कहते हैं, जब हम 2 या 3 कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं सो दैट वी गेट दैट द रिजल्टिंग नंबर, एंड दैट रिजल्टिंग नंबर जो वहाँ से रिजल्ट आ जाता हमारा, तो दैट इज द प्रोडक्ट एंड दीज आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ दैट वेरी टर्म. इसके बाद कोएफिशिएंट. अब अगर हम यही टर्म लेंगे 2, हम यहाँ लेंगे 2x स्क्वायर हमने लिया, या हम ऐसे ले सकते हैं 3x क्यूब भी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे 2 सेपरेट टर्म्स लिए हैं, तो आपने डिसाइड हमने यहाँ पे डिस्कस क्या करना है, वी हैव टू डिफाइन द कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इन 2 टर्म्स की बात करेंगे तो हम लिखेंगे इन अ टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी ऑफ द फैक्टर्स में हमें पता फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर इसके फैक्टर है 2 है, x है यहाँ फैक्टर 3 है फैक्टर, तो which carries which we have simply with the sign, any of the factors with sign of term is called coefficient of the product of other terms. याद रखना. तो यहाँ पे कोएफिशिएंट हमने डिफाइन करना है. कोएफिशिएंट हम किसे कहते हैं, हमने क्या काम किया, वी टेक ए टर्म 2x स्क्वायर, हमने 2x स्क्वायर यहाँ पे एक टर्म लिया है और हमने दूसरी टर्म लिया -3x स्क्वायर. तो इन दो में हमने क्या डिफाइन करा, कोएफिशिएंट. तो यहाँ पे हम क्या करें, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इन द टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर, कोई भी फैक्टर इनमें से, ठीक है ना बेटा, विच टेक्स जो यहाँ पे अपने साथ साइन ले जाता है. यहाँ पे अगर हम बात की जाए 2 की तो इसके साथ प्लस साइन है, 3 की बात की जाए तो यहाँ पे माइनस है. तो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज, इसी को हम कहते हैं दीज आर नोन एज द कोएफिशिएंट. हाँ, कोएफिशिएंट वो पार्ट होता है टर्म का दैट टेक्स ए साइन विथ इट, जिसके साथ साइन होता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो. क्लियर. इसके बाद है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. like and unlike terms. तो like terms having, like terms की अगर बात की जाए, terms having same literals or factors, वो टर्म जिनके फैक्टर्स सेम होंगे तो दे आर टर्म्ड एज, उन्हीं को हम कहते हैं like terms, otherwise they are termed as otherwise they are called as unlike terms.
हाउ टू नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, जो हमने ऊपर कंसेप्ट्स मैंने डिस्कस किए, जैसे कि मैंने आपको मटेरियल भी प्रोवाइड किया है, तो वहाँ पे हम क्या काम करें, हमने क्या लिया है, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए वी टेक सीक ऑफ सम एग्जाम्पल्स। तो हम थोड़ी सी एग्जाम्पल्स यहाँ ले जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल वहाँ पे लिखी है ए इक्वल्स टू 2 इंटू आर प्लस एस। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो 2 हमने पहले क्या पढ़ा, पहले ही जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया दैट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल एक्सप्रेशन के बाद। तो यहाँ पे ए इसका अपना फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, ए है, आर है और एस है, दीज आर नोन एज वेरिएबल्स। इनको हम वेरिएबल बिकॉज दे डोंट हैव देयर वैल्यू, दे टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज, दे डोंट हैव द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ पे अगर 2 की बात की जाए इट इज कांस्टेंट, 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और दीज आर वेरिएबल्स। अब अगर दूसरे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 3x² माइनस 5xy प्लस 4y² प्लस 8। देखो यहाँ पे ये पूरा जो एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हाँ, अगर बात की जाए 3x² की कामा माइनस 5xy की कामा 4y² की, दीज आर टर्म्स, इनको हम टर्म्स कहते हैं इसके। और 8 जो यहाँ पे इट इज अ कांस्टेंट टर्म। हाउएवर, हाँ यहाँ पे अगर हम कहेंगे हाउएवर 8 के साथ x रेज्ड पावर 0 कैन बी एज्यूम्ड टू बी इट्स लिटरल फैक्टर। जैसे हमें पता है इसको हम लिटरल फैक्टर ले सकते हैं, बट वी नो दैट 8 इंटू एक्स रेज्ड पावर 0, एक्स रेज्ड पावर 0 इक्वल्स टू 1, दैट इज 8 इक्वल्स टू 8 इंटू 1 इक्वल्स टू 8। क्लियर। हाँ, उसके बाद हमने मोनोमियल, तो सिंपली मैंने एग्जांपल लिया -2x मोनोमियल है, सिंगल टर्म्ड है, 4y² सिंगल टर्म्ड है, हाँ 7 है, तो इनको हम मोनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल की अगर बात कीजिए दैट इज 4x हमने लिया प्लस 3y, उसके बाद हमने लिया 2x² y प्लस 8, दीज आर एग्जाम्स ऑफ बाइनोमियल। अब ट्राइनोमियल की अगर बात की जाए दैट इज 4x प्लस 3y प्लस 8, तो 3 टर्म एक्सप्रेशन है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल। ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट हाँ, अब हम और एक एक्सप्रेशन लेंगे दैट इज 5a² b माइनस 3ab² माइनस 7ba² प्लस 6ab²। हमने लाइक और अनलाइक टर्म्स की। देखो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो इनके फैक्टर्स सेम है, यहाँ पे फैक्टर्स सेम है, तो सेम फैक्टर्स विच हैव द सेम फैक्टर्स, ठीक है ना। तो वी कैन से दैट दीज आर नोन एज, यहाँ पे हम कह सकते हैं आर लाइक टर्म्स। हाँ, तो इनको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पे 3ab² 6ab² की अगर बात कीजिए दे आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, ये भी लाइक टर्म्स है। अब अगर 5ab² लेंगे और 7ba² लेते हैं, 5a² या 3ab², तो अगर हम इन दो टर्म्स को लेते हैं दे आर अनलाइक टर्म्स, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन of algebraic expressions and entities. So now we will proceed towards exercise number first. The exercise number first says that first part, identify the terms, their quotients for each of the following. हमने terms identify करने और उनके quotients बताने। तो क्लियर आपको होगा कि इतना मुश्किल नहीं है देखना। तो अगर पहली पार्ट की बात की जो दैट इज 5xy/z² माइनस 3zy। देखो यहाँ पे अगर टर्म्स हमने क्या कहा आइडेंटिफाई, टर्म्स पहले लेने हैं, टर्म्स यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स। देखो ये टर्म है 5xyz² एक टर्म है, तो यहाँ पे सेपरेट होता है, तो ये दूसरी टर्म है -3zy। तो यहाँ पे 5 साइन कैरी कर जाता है, तो इट इज़ अ कोफिशिएंट। तो 5 यहाँ पे -3। तो क्लियर। आई होप कि बाकी पार्ट्स आपको आएंगे करने। हाँ, इसमें फिफ्थ पार्ट की अगर बात की जाए, देखो फिफ्थ पार्ट इसने दिया है हाँ x/2 कामा या प्लस y/2 माइनस xy। तो यहाँ पे टर्म्स की अगर बात की जाए, पहली टर्म है 1/2x हम ले सकते हैं, 1/2y भी टर्म है
माइनस एक्स वाई बी टर्म। अब कोफिशिएंट्स यहाँ पे इसका कोफिशिएंट साइन ये कैरी 1/2 कैरी कर रहा है, तो 1/2 कोफिशिएंट है, 1/2 कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो इट इज -1। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ना क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 यू कैन, आई विल टेक एन एग्जांपल। तो पहला वाला पार्ट जो है इसका, question number 2, that is classify the following columns as monomial, binomial first single term, binomial 2 term, trinomial 3 term। तो पहला पार्ट है x प्लस वाई, तो प्लस से सेपरेट हो जाते हैं, तो ये एक टर्म है और एक टर्म है, ये चीज बाइनोमियल, तो 2 टर्म है। इसके बाद सेकंड पार्ट है 1000, दैट इज मोनोमियल, 1 2 3 4 इट इज पॉलिनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 trinomial, 1 2 3 trinomial, 1 2 binomial, 1 2 3 4 polynomial, monomial, binomial और binomial। ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप कि आप एक काम करिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना नहीं भूलना और टॉपिक को शेयर करना। थैंक यू।